तो चलो आज ये चैप्टर खत्म करना था, लेट हो गया, शायद ना कर पाऊं, फिर भी कोशिश करते हैं कितना हो जाता देखते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। वी स्टार्टेड विद डायमेंशनल एनालिसिस, राइट। तो डायमेंशनल एनालिसिस में वी हैव सीन फ्यू टॉपिक्स लाइक पहले क्वेश्चंस देखा था हमने जिसमें वी वर आस्क्ड टू फाइंड dimensions or estimate the dimensions of a unknown quantity in an expression, right? Then we have seen to derive the expression between relation between three or more, or two or three or four quantities, right? Now next is unit conversion. One second. So next application is unit conversion. That is to find relation between unit of a quantity in different systems, right? This again you have been doing since junior classes, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है. For example, we have been converting kilometer per hour to meter per second. ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं. तो कैसे लिखते थे? 1 kilometer per hour is what 1000 meter and r in second is 60 into 60 second. So हम लिखते थे 1 kilometer per hour is 5 by 18 meter per second, right? So 1 kilometer per hour is 5 by 18 meter per second, right? समझा? हेलो? Yes, sir. अब यही थोड़ा सिस्टमेटिकली वो लोग लिखने के लिए बोलते हैं, प्रेजेंट करने के लिए बोलते हैं. कैसे? जैसे सपोज आपसे मैंने बोला प्रेशर का SI यूनिट है और CGS यूनिट है, और क्वेश्चन आता है derive relation between SI unit and CGS unit of pressure. एक एग्जांपल ऐसा कुछ भी पूछ सकते हो आपसे, राइट? सो derive relation between CGS unit and SI unit of pressure. So you can start any this way. We'll make an assumption. Let pressure in SI units is x times pressure in CGS unit, or you can write x on this side. So क्या लिखा हमने? Pressure in SI units is x times pressure in CGS units, right? Now write the dimensions. Dimensions of pressure is about ml minus 1 t minus 2 in SI units is x times ml minus 1 t minus 2 in CGS units, right? Now mass in SI unit is what? Kilogram. Length is meter. Time is second square. X times mass is in gram. Length is in centimeter. Time is in second. Now convert. 1 kg is how many gram? 1000 gram. Meter is 100 centimeter. Second is second. So x times gram per centimeter second. So just gets cancelled. X is equal to 10. Therefore, 1 SI unit of pressure is x CGS unit of pressure. Then 10 CGS units of pressure. This. So I'm sure बहुत इजी लगा हुआ है, इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है. या एक और एग्जांपल करके दिखाऊं? हेलो? No, sir. ओके, सो इट्स वेरी इजी. इधर पे फोर्स दिया होगा तो ऐसा लिखा होगा न्यूटन और डाइन के बीच में रिलेशन निकालना. तो 1 न्यूटन इज x डाइन्स. तो mlt minus 2 in SI units is x times mlt minus 2 in CGS. Substitute करो, आंसर निकालो, right? So this is
अगेन वेरी इजी, राइट? कुछ खास दम नहीं है इसमें, बस आपने थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख दिया, बाकी कर दो हम बचपन से ही रहेगा. ओके, नाउ the last application which is there in our syllabus is to check whether a given equation is dimensionally correct or not. To check whether a given relation is dimensionally correct or not. Dimensionally correct. So, third application is to check whether a given equation or relation between quantities is dimensionally correct or not. ठीक है? Suppose somebody claims, एक example है, someone claims n is equal to 1 upon 2l root of t by m, where n stands for frequency of vibrating string, frequency of vibrating string, L stands for length of the string, T stands for tension, which is kind of force, M is mass per unit length, mass per unit length. So dimensional analysis का ये आखिरी application है. This is again very easy, trust me. आपको सिर्फ इसमें चेक करना होता है कि रिलेशन में जितने भी टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स की यूनिट या डायमेंशन सेम है या नहीं है, राइट? तो यू हैव टू चेक whether units and dimensions of all the quantities in the equation are same or not, right? तो यहाँ पे कितने टर्म्स दिख रहे हैं? Exactly two terms, right? I can see two terms. Which one? एक n हो गया और एक 1/2l root of t by m हो गया. So n is what? Frequency. तो frequency की unit क्या है? What is unit of frequency? 1/6. Per second, right? That is hertz. So 1/second. तो dimensions of n क्या होगा? t raised to -1 per second. तो per unit time. ये हो गया dimension किसका? Left hand side का, right? That is frequency. Now dimensions of 1/2l root of t by m, इसके dimensions देखते हैं. तो ये तो l raised to -1 हो गया per unit length, तो l raised to -1. Tension is force, that is mlt -2 raised to half. This is mass per unit length, तो ml -1 raised to -1. तो देख लो क्या क्या, m raised to half plus half, sorry half minus half, l raised to -1 plus half plus half, t raised to -1, that's it. So m raised to 0, l raised to 0, t raised to -1. So left hand side और right hand side दोनों के dimensions same है, correct? Yes, sir. So ये dimensionally correct है. I am not sure whether it is in principle correct or not. मतलब थ्योरी के हिसाब से सही है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, डायमेंशंस के हिसाब से ये करेक्ट है, इतना ही मैं गारंटी दे सकता हूँ. सो दिस इज डायमेंशनली करेक्ट, दिस इज ऑल आई कैन से, राइट? ठीक है, एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप खुद से ट्राई कर लो. ये चेक कर लो सही है कि नहीं. P stands for pressure, M stands for mass, ये density है, ये velocity है, density, gravity and height. Check whether this expression is dimensionally correct or not. एक्चुअल में है कि नहीं वो छोड़ दो, वो तो हम देखेंगे किसी दूसरे चैप्टर में फिजिक्स के.
but you have to check whether it is dimensionally correct or not. So ये वॉल्यूम, मास नहीं, सॉरी वॉल्यूम है, ये वेलोसिटी है, ये वॉल्यूम, कुछ भी कर दो अपने मत। चलो, P stands for pressure, P is pressure, V is volume, ये वाला भी, ये velocity, volume, rho is density, V is velocity, G is acceleration due to gravity, H is height, H is height. So try this. Take 2 minutes and solve. मेरी तरफ से चैप्टर ये पार्ट खत्म हो जाएगा फिर। सर डायमेंशनली करेक्ट है। Dimensionally they are this equation is correct, right? आ रहा है सबको? करूं मैं बोर्ड पे ये? Pressure per unit volume half rho v square and rho gh all have same dimensions. हेलो, चलो मैं भी एक बार करके दिखा देता हूं, तो जिसको नहीं समझा वो भी समझ जाएगा। प्रेशर बाय वॉल्यूम, तो प्रेशर के डायमेंशंस क्या है? ml minus 1 t minus 2, this is volume, volume is L3, so PL minus 4 t minus 2, right? This is dimension of first term. There are 3 terms, P by V. Now let's check this one, second term. Dimensions of half rho V square. Rho is density, that is ml minus 3. V is velocity, तो LT minus 1, तो L2T minus 2, right? So ये हो गया ML minus 1 T minus 2, नहीं सेम आ रहा ना? हेलो, वैभव, हेलो, सर चेक कर रहा हूँ। सेम नहीं आ रहा बेटा। एंड रो जी एच के भी डायमेंशंस देखिए लो। रो जी एच इज व्हाट? रो इज ml minus 3, g is LT सर रो minus था, 2. मैं सर प्रेशर करके कर दिया सॉल्व। नहीं, डेंसिटी, रो इज डेंसिटी। सो ये कितना हो गया? ml minus 1 t minus 2. सो इन दोनों के डायमेंशंस तो सेम है, इसका डायमेंशन अलग है। So dimensionally this is wrong. Dimensionally this equation is wrong. Clear? Yes, sir. Okay. Now ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। इस टॉपिक में कुछ दम नहीं है। स्कूल एग्जाम्स में कभी कभार पूछते हैं, एंट्रेंस में बिल्कुल नहीं पूछते। मतलब आई कैन नॉट से, नीट में तो पूछा है एक आध बार, बीच बीच में पूछ लेते हैं कभी, बट आई बिलीव दिस इज वेरी इजी, यू कैन प्रैक्टिस। ना इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एरर एंड एरर एनालिसिस। एरर एंड एरर एनालिसिस, एरर एंड एरर एनालिसिस, राइट? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये टॉपिक से ऑलमोस्ट एवरी, नॉट ऑलमोस्ट एवरी टाइम देयर इज अ क्वेश्चन इन जेईई एज वेल एज इन नीट। सब में जगह पे एक क्वेश्चन इसके ऊपर से रहता है, राइट? सो एरर एंड एरर एनालिसिस। तो लेट्स सी व्हाट इज एरर। एरर क्या?
Error in measurement. Error in measurement. If I ask you to measure something, if I ask you to measure something, अभी आपको शायद लग भी रहा हो क्या है, कोई बड़ी बात नहीं, I'll measure it. But actually it's a big challenge. To get accurate measurement of anything is a big challenge, right? किसी भी चीज का 100% accurate measurement आप कभी कर ही नहीं सकते. You cannot measure anything with 100% accuracy, right? मैं यहाँ पे एक line draw कर दूं and I ask you to measure the length of this. I'll give you a measuring instrument, maybe a ruler or measuring tape, whatever. But and if I ask you to measure this length, 100% accurate measurement आप कभी नहीं बता पाओगे. जो भी बताओगे वो approximation होगा. That would be close to the accurate value, but it cannot be accurate, right? If you really want to get feel of it, तो आप एक काम करना, right? एक measuring tape लेके आप अपने room का, hall का, आपके घर का bedroom या hall का area निकालने की कोशिश करना, right? Measure the length using the tape, measure width using the tape, and calculate the area. Then ask your brother to do the same. Don't tell him your answer. Ask your brother to measure the same, right? To your surprise, the two answers will not be same. हो सकता है आपका आंसर कम है उसका ज्यादा है, या उसका कम है आपका ज्यादा, right? किसी का भी कम ज्यादा हो सकता है, but the two answers will not be same. The question is which one will be correct, the one which you have measured or the one which your brother measured? So answer is none of them are 100% correct. ठीक है, सब में कुछ ना कुछ एरर है ही, राइट? क्यों एरर है? बहुत सारे सोर्सेस होते हैं एरर के, राइट? I'll explain them one by one. There are different sources of error, but one thing I can say for sure कि there will be error in your measurement. Errors are always part of measurement. Errors cannot be eliminated. Error cannot be eliminated, though it can be minimized by being careful and using good instruments, but 100% it cannot be removed, right? So errors will always be part of measurement. ठीक है, तो error आपको समझ में आ गया, कुछ तो है, क्यों है वो भी हम समझेंगे, बस ये समझ में आ गया आपको कि error होता है, ठीक है? अब देखो, error से मिलते जुलते दो words हैं, accuracy and precision. इनका मतलब समझते हैं ना, accuracy and precision. Accuracy क्या होता है? Accuracy is being closer to the correct answer, correct measurement. एक लाइन है जिसकी लेंथ जो है मुझे नहीं मालूम कैसे, बट इसकी लेंथ है 15.1375 सेंटीमीटर. मुझे नहीं मालूम ये कैसे हुआ. लेटेस्ट से भगवान ने मेरे को सपने में आके बताया कि ये रूम, इस लाइन की लेंथ है 15.13752 सेंटीमीटर, ठीक है? अब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोला मेजर करो, नहीं, ए ने मेजरमेंट निकाला उसका 15, ठीक है? बी ने उसका मेजरमेंट निकाला 15.25, सी ने उसका मेजरमेंट निकाला 15.1, डी ने उसका मेजरमेंट निकाला 13.9535, नहीं? ऐसे करते करते बहुत सारे मेजरमेंट्स निकाले. अब बताओ इनमें से कौन सा एक्यूरेट है और कौन सा प्रिसाइज है? तो एक्यूरेट, एक तो 100% एक्यूरेट कोई है ही नहीं. लेट्स चेक क्लोजेस्ट टू दिस वैल्यू. इसके क्लोजेस्ट कौन है? 15 क्लोज है 15.25, उससे भी ज्यादा क्लोज. तो नहीं, 15 से ज्यादा क्लोज तो 15.25. सी, दिस इज नियरली 15.14. तो इधर तो ज्यादा पास हो गया ना, 15 तो फिर भी दूर हो गया, राइट? This is closest, so this is most accurate. This is most accurate, not accurate, close to accurate measurement, close to accurate measurement.
and this is most precise. This is most precise. इसमें प्रिसिजन है, ये डेसिमल के 4 प्लेसेस तक आपको मेजरमेंट बता रहा है, तो ये एकदम प्रिसाइज बात कर रहा है, राइट? दूर दूर घूम के बात नहीं कर रहा है। हम लोग होते हैं ना रियल लाइफ में, एकदम प्रिसाइज बात करते हैं, गोल गोल घुमा के बात नहीं करते, राइट? ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स आए हैं 25 मार्क्स का टेस्ट हुआ एंड समझो 14 मार्क्स आए, आपके फादर ने पूछा कितने मार्क्स आए, तो एक मैं बोलता 14, दूसरा बोल रहा है मैं पढ़ के नहीं गया था इसके लिए मैंने टेस्ट लिखा तो थोड़े से कम आए, तो पूछा कितने कम आए, तो बोले 50% से थोड़े ज्यादा आए। तो ये क्या है, ये प्रिसाइज नहीं है। प्रिसाइज होना मतलब क्लोज टू बात करना, मतलब अगर फिजिक्स में बात करूं मैं, तो कितने डेसिमल प्लेस के बाद कितनी यूनिट्स तक आप बता रहे हो, राइट? प्रिसिजन का सीधा लेना देना लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से होता है, लीस्ट काउंट से लेना देना, राइट? एंड एक्यूरेसी का मतलब होता है क्लोज टू करेक्ट मेजरमेंट, क्लोज टू करेक्ट measurement, right? When someone says precision comes from what, तो precision comes from least count. अगर आप मीटर स्केल यूज करते हो तो आप ये मेजरमेंट 15.1 बोलते थे. If you manage to use vernier, I'm sure that you cannot use vernier here, but suppose वर्नियर से यूज करते थे तो आप 15.13 बोलते थे, अगर स्क्रू गेज से पढ़ते थे तो 15.137 बोलते थे. तो ये प्रिसीजन के साथ बढ़ता जाता है, राइट? सॉरी, लीस्ट काउंट के साथ प्रिसीजन बढ़ता है. सर ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक नंबर का हम लोगों ने मेजरमेंट निकाला तो वो एक्यूरेट भी और प्रिसाइज भी है? अरे बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. अगर किसी ने 15.1418 निकाला होता तो ये प्रिसाइज भी दिख रहा है और ये क्लोज टू एक्यूरेट भी हो रहा है, बिल्कुल हो सकता है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों मेंटेन हो, बट ये दिमाग में कभी मत लाना कि एक्यूरेट है तो 100% मतलब प्रिसीजन ज्यादा होगा, सर. राइट? एक्यूरेट. सर मुझे एक और चीज नहीं समझ में आता, ये जो लेंथ मतलब जो वहाँ पे हमारे यहाँ के नंबर सिस्टम में लेंथ किससे निकालते हैं? मतलब जो बेसिक यूनिट रहता है ना, किससे निकालते हैं? जैसे अपना टाइम के लिए वो सीजियम का एटम यूज करते हैं, तो उसके वाइब्रेशंस यूज करते हैं, तो उसके लिए क्या है, लेंथ के लिए क्या है? लेंथ के लिए देखो बेटा, एक तो पहले के टाइम में एक रॉड एक्चुअली में रखी हुई थी वहां पे, उसका जो लेंथ था उसको 1 मीटर नाम दिया था. नाउ वी हैव बेटर डेफिनेशंस, वो लाइट के टर्म्स में बताया है. डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/299,752 ऐसा कुछ तो सेकेंड्स है, पार्ट ऑफ द सेकेंड, कुछ है यूनिट, में भूल गया वैल्यू उसकी. बेटा वो याद करने की जरूरत नहीं, मैंने आज तक कभी याद नहीं रखा, तो वो याद रखने की आपको जरूरत नहीं है. हाँ, उसका डेफिनेशन है लाइट के स्पीड के टर्म्स में, राइट? कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन दिस मेनी सेकेंड्स. वो लाइट का जो 8 डिजिट्स में 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला स्पीड का जो वैल्यू है उसके टर्म्स में डिफाइन किया, समझा? और स्टार्टिंग में उससे भी पहले एक एक्चुअल में रॉड रखी हुई थी, उस रॉड के लेंथ को 1 मीटर बोला था. जी सर. ओके, सो प्रिसीजन का लेना देना किससे है? लीस्ट काउंट से लेना देना है. और एक्यूरेसी का लेना देना किससे है? क्लोज वैल्यू, मतलब करेक्ट वैल्यू के कितने क्लोज हुआ, राइट? प्रिसाइज होगा दैट डज नॉट मीन्स कि एक्यूरेट होगा, एक्यूरेट होगा दैट डज नॉट मीन्स प्रिसाइज होगा. बट यस, यूजिंग प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, मतलब इससे होता है, अगर आपने प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज किया तो चांसेस ऑफ गेटिंग एक्यूरेट रिजल्ट इज मोर, right? By using precise instrument, chances of getting accurate result is more. आपके chances बढ़ जाते हैं, right? यस सर. मेरी बात समझ में? ओके. बट अगर आपने प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट तो लिया लेकिन आपको उसको हैंडल करना ही नहीं आता या उसमें कुछ फॉल्ट था, तो एक्यूरेसी तो चली जाएगी ना.
So precision does not ensures accuracy, but yes, ऐसा बिलीव तो है हमारा कि अच्छा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे तो रिजल्ट तो अच्छे आने चाहिए, एक्यूरेट रिजल्ट आना चाहिए। क्लियर है? हेलो? जी सर। Okay. Now, how have they classified errors? Errors को भी उन्होंने क्लासिफाई किया, अलग अलग टाइप के एरर्स होते हैं। जैसे दो मेजर क्लासिफिकेशन है, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। क्या? सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर किसको बोलते हैं? जो यूनिडायरेक्शनल होता है, या तो हर बार बढ़ता जाता है जितनी मतलब फॉर एग्जांपल सपोज ये लेंथ, इस बोर्ड की लेंथ मुझे इस पेन के रिस्पेक्ट में मेजर करनी है, तो मैं कैसे करूंगा? आई विल रिपीट 1 2 3 4 ऐसे रिपीट करूंगा। तो मैं जितनी रिपीटिशंस कर रहा हूं, अगर मैं हर बार थोड़ा सा ऐड होते जा रहा है, कुछ ऐड होते जा रहा है, या हर बार कुछ माइनस होते जा रहा है, तो उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, राइट? एंड रैंडम एरर कभी कम हो जाना तो कभी ज्यादा हो जाना, कोई एक डायरेक्शन में नहीं होता, या तो रीडिंग उससे सॉरी, या तो रीडिंग मतलब जो मेजरमेंट आप निकाल रहे हो वो ज्यादा हर बार होते जाए या हर बार कम होते जाए, तो उसको सिस्टमैटिक बोलते हैं। एंड इफ इट इज रैंडम, कभी ज्यादा कभी कम निकाल रहे हो आप, राइट, तो उसको बोलते हैं हम लोग रैंडम एरर। इसके ऊपर एक बार नीट में शायद कुछ क्वेश्चन पूछा था, या किसी एग्जाम में मैंने देखा था, एक क्वेश्चन था इसके ऊपर कि विच ऑफ दीज कैन नॉट बी सिस्टमैटिक एरर। तो कुछ ऐसे क्लास नंबर नाम दिए हुए थे, उनमें से आपको बताना था कि कौन सा सिस्टमैटिक एरर है, कौन सा नहीं है, राइट? तो सिस्टमैटिक एरर में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, आपके एरर, आपके इंस्ट्रूमेंट में, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर है, राइट, दैट इज कंसिडर्ड एज सिस्टमैटिक एरर। अब वो कैसा एरर? तो जैसे इसमें इम्परफेक्ट डिजाइन हो गया, डिजाइन में कुछ एरर है, समझो डिजाइन में कुछ एरर है, राइट? या तो फिर एक बहुत कॉमन एरर होता है जीरो एरर, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं, जीरो एरर। तो इम्परफेक्ट डिजाइन है, डिजाइन में कुछ फॉल्ट आ जाए आपके इंस्ट्रूमेंट के, राइट? जैसे स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस का जो स्प्रिंग है वो प्रॉपर कैलिब्रेट नहीं हुआ, जिसको आप 1 kg रीड कर रहे हो, एक्चुअली 988 ग्राम्स ही होता है। तो वो इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर आ जाए, स्प्रिंग में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या स्केल उसकी कुछ बेंड हो जाए, या कुछ तो ऐसा हो जाए, तो उसको बोलते हैं डिजाइन में एरर। ये एरर इंपॉर्टेंट है, जीरो एरर। इसमें बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर करके बार बार पूछते हैं, जबकि है बड़ी सिंपल सी चीज। जीरो एरर किसको बोलते हैं? सी, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है? तो स्प्रिंग बैलेंस है, उसमें क्या होता है, एक स्प्रिंग लगी होती है और एक पॉइंटर होता है, नहीं? और उसमें एक होता है पॉइंटर, नहीं? तो ये पॉइंटर है और ये आपका एक पैन है, ठीक है ना? इस पैन में यहाँ पे रीडिंग्स है, ठीक है? ये 0 1 2 3 4 5। इस पैन में कोई भी वेट नहीं है, देयर इज नो वेट एडेड इन द पैन, ठीक है? तो यू एक्सपेक्ट द पॉइंटर टू बी एट व्हाट वैल्यू? इट शुड बी अगेंस्ट 0 और अगेंस्ट 0.1 0.2, किसके अगेंस्ट होना चाहिए? 0 0 ऑब्वियसली 0 के अगेंस्ट होना चाहिए, राइट? बट आप क्या नोटिस करते हो, इधर कोई लोड नहीं होने के बाद भी यहाँ पे पहले से ही समझो 100 ग्राम दिखा रहा है, 0.1 kg दिखा रहा है। ऐसे एरर को बोलते हैं जीरो एरर। व्हेन इट शुड शो 0 रीडिंग, इट डज नॉट शोज 0, इंस्टेड कुछ पॉजिटिव वैल्यू या कुछ नेगेटिव वैल्यू वो पहले से ही दिखा रहा है। ऐसे एरर्स को बोलते हैं जीरो एरर, राइट? अब इसमें अगर आप 1 kg डालोगे तो क्या रीडिंग बताएगा? इफ यू ऐड 1 kg टू इट, तो व्हाट रीडिंग इज गोना शो? सॉरी, 1.1 1.1 दिखाएगा।
अगर 2 kg डालोगे आप तो 2.1 दिखाएगा, ऐसा थोड़ी ना कि कभी कम कभी ज्यादा दिखाएगा, राइट। एंड 1 kg आप मेजर कर करके अगर साइड में रखते जाओगे तो वो एरर जो है वो बढ़ता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि कभी ज्यादा हो गया कभी कम हो गया, ऐसा नहीं। 1 kg कुछ मेजर किया, साइड किया, फिर 1 kg मेजर किया, साइड किया, फिर 1 kg मेजर किया, साइड किया, तो हर बार 1.1 1.1 1.1 1.1 ऐसा एरर ऐड होता जाएगा। तो ऐसे एरर को बोलते हैं जीरो एरर, और ये एक डायरेक्शन में ही प्रोसीड करता है, तो इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर।